So it is a quick organic revision. Let's start with the basic introduction to organic chemistry, and there is still some confusion or some issue with the introduction to organic chemistry. And you remember, I gave you introduction to organic chemistry for almost like a month. So I'm just going to emphasize which basic, very basic stuffs about hydrocarbon, about the introduction of organic chemistry is important for your examination point of view, your definition. Sometimes ऐसा होता है कि we are so busy in memorizing the reagent and condition and doing the complicated questions of organic, and we give less importance to the very basic introduction, like the definition of hydrocarbon, like the definition of isomerism, this stuff. So I'm just going to give you a reminder about all these definitions. Okay? They never ask about the definition of hydro organic compound, but there is a possibility that they ask about the definition of homologous series. Okay? So it is a series of organic compounds that contain the same functional group. You know about all O levels examples आप जानते हैं. Compound belongs to the same homologous series, have the same chemical reaction because they have the same functional group present, but different physical properties. Physical property depends on the intermolecular forces, and physical properties depend on the MR basically if it's a non-polar compound. ठीक है? Type of intermolecular force पे depend करता है basically physical property. So intermolecular forces different है. Although if they have the same intermolecular forces, they have a different MR values, जिसकी वजह से extent change हो जाता है, boiling point, melting point change हो जाता है. ठीक है? Clear? So they have the same chemical properties. So this area is important. There is a possibility of a definition, and one-liner is statement about the physical and a chemical properties differences between the homologous series. Okay? And then the definition of function group, yes, it is an important definition, that any atom or a molecule that give a distinguished property to an organic compound. Again, they never ask about the example, but you know about the function. They ask you to give the name of all the functional group present in an organic molecule. They give you the structure of an organic molecule, and they ask you to give the name of the functional group. Make sure that you identify the functional group correctly. Which one is aldehyde, a ketone, carboxylic acid? वो तो बहुत basic stuff है ना. You can easily identify which one is which type of functional group is present. But make sure if you have any alcohol present, if you have any alcohol present, to make sure to write down the complete name of an alcohol. Either it's a primary alcohol, secondary alcohol, or a tertiary alcohol. ठीक है? So ये दो definition important है, बल्कि हाँ homologous series की और functional group की. ठीक है? अपने पास कहीं note down करते रहिए जो definitions हैं, और you can keep taking the screenshot of these definitions. It's up to you. ठीक है? तो अगर चाह रहे हो तो ये notes आपके पास हैं, सबके पास. ठीक है? Just make a screenshot of this one and a screenshot of this one. ठीक है? Done? Okay. Now, these are the functional group. I'm not going to go in a detail of alkanes, alkynes, alcohol, carboxylic acid, ester, aldehyde, CHO, ketone, halogen alkane, nitrile, amines, and amides. So these are the functional group present. Okay? And then the representation of an organic molecule. They do ask the definition of a molecular formula and empirical formula. Important screenshot. Definition जरूरी है. ठीक है? So definition क्या है? कि molecular formula, exact number of all the elements present in a molecule. Empirical formula is the simplest ratio of all the elements. So empirical simplest ratio है. Molecular formula. Now, ये जो definitions अब तक मैंने आपको बताई हैं, basically these are the definition. Usually Cambridge asks these definition in the first question of organic. ठीक है? Whenever they think that they have to make some part of the organic question easier. जब उन्हें लगता है ना कि उनके C और D पार्ट थोड़े से इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल के हैं या ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के हैं, सो वो फर्स्ट फ्यू पार्ट्स में डेफिनेशन पूछते हैं ताकि डिफिकल्टी लेवल बैलेंस हो जाए. अब अनफॉर्चुनेट सीन क्या होता है कि जो डिफिकल्ट पार्ट है, अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यू गिव लेस इंपॉर्टेंस टू द वेरी बेसिक स्टफ लाइक दीज डेफिनेशंस, तो फिर आपसे पूरा क्वेश्चन जो है वो मिस हैंडल हो जाएगा. ठीक है ना? तो ना जिसको कैम्ब्रिज आसान समझ रही थी आपको उसमें मार्क्स आएंगे, और जो इंटरमीडिएट था उसमें भी आपने वैसा कर दिया. ठीक है? तो मेक श्योर इन सेशंस का मकसद यही कि आपको इंपॉर्टेंस बताना कि क्या चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है? क्लियर? Or general formula, yes, molecular and empirical formula give no idea about the which type of functional group present, because if they have isomer, one oxygen, तो ketone भी हो सकता है, aldehyde भी हो सकता है, two oxygen, so it could be an ester, it could be a
कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें ये नहीं पता चलता, ये हमें पता चल रहा है क्या रेशियो है या कितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जर्नल फॉर्मूला डेफिनेशन जरूरी नहीं है। एल्कीन एल्कीन्स अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला एज ओ लेवल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, displayed formula no definition, but you should know that you have to represent you should know how to represent a molecule, a fully displayed formula of the molecule. And whenever I say the fully displayed formula, it means that you have to represent OH like this. अगर OH है तो OH को भी fully displayed लिखना है। ठीक है बेटा, इसमें कोई मिस्टेक, किसी एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए। हाँ, when you draw the displayed formula, when you draw the displayed formula, bond angles show करने की या particular shape में draw करने की जरूरत नहीं है until or unless they ask you to do so. जब तक वो आपसे नहीं बोलेगा, आप इस पे शेप और बॉन्ड एंगल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यस, आई नो दैट जब भी उसे CH4 बनाना होता है वो टेट्राहेड्रल शेप में MS में गिवन होता है, लेकिन if they ask you to draw the displayed formula of CH4, आप सिंपल लीनियर फॉर्मूला ड्रॉ कर दीजिए अगर उसने कोई बॉन्ड एंगल या शेप की बात नहीं करी है। Is it clear? I hope the point is clear. Otherwise, बच्चे की कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर मान लो 3D शेप गिवन थी और यहाँ से भी इसने डिस्प्लेड फॉर्मूला पूछा था, तो अगर उसने नहीं बोला कि आप शेप बनाइए तो आप नॉर्मल लीनियर फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलेटन फॉर्मूला वेरी, दीज टू फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, नॉट द डेफिनेशन। You should know how to replicate a displayed formula into a structural form or into a skeleton form, and they give you somehow sometime your structure formula is slightly different from the structure formula given in a marking schema or जो मैंने draw करा, but if the structure formula is same, if it's correct, no matter slightly different representation हो तो चल जाएगा, लेकिन make sure that you follow the rule. The rule simple सा है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्स्ट कार्बन एवरीथिंग ऑन दैट कार्बन, अगर 2 हाइड्रोजन है लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन है लिख दीजिए, वट एवर इट इज, एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, यू डू नॉट शो एनी कोवेलेंट बॉन्ड रेदर देन द मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड आप शो नहीं करते। दूसरी बात समझ आ गई। तीसरी बात यह है कि इफ एनीथिंग प्रेजेंट rather than hydrogen, if anything present on the middle carbons, they must be enclosed in a bracket. ठीक है, जैसे अगर सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है तो आप लिखेंगे CH ब्रैकेट OH। हाँ, इफ द OH इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन, यानी लास्ट वाले कार्बन पे OH है, तो उसे ब्रैकेट में इनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई CH3 ब्रांच में आ रहा है तो आप उसे ब्रैकेट के अंदर CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो आई होप के पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ स्केलेटन फॉर्मूला इज अ zigzag रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा, एंड इन दिस zigzag रिप्रेजेंटेड ईच दिस टाइप ऑफ पॉइंट, लाइक ये जो इंटरसेक्शन है, इट रिप्रेजेंट द कार्बन and the remaining hydrogens on that carbon. तो अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो it has how many hydrogen बेटा? It has 3 hydrogen. ठीक है, इसकी बात करें तो it has how many hydrogen? It has 2 hydrogen. So आप पहले काउंट कर लीजिएगा कि दिस कार्बन, इस कार्बन से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और फिर जो मिसिंग कोवेलेंट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से वैलेंसीज फुलफिल होंगे। ऑन दिस वन यू ओनली हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, and we do not represent any hydrogen in a skeleton form. ठीक है, we represent a double covalent bond. Let's suppose अगर यहाँ पे double covalent bond होता तो it must be like this. ठीक है, तो सारी चीजें आप जानते हैं, मैं सिर्फ एक दफा रीएम्फसाइज कर रहा हूँ। Clear? And this is how we did the introduction. For any given molecule, I give you a displayed formula, and then फिर हमने उसे replicate किया structural form में और फिर उसी का skeleton form draw किया। ठीक है, तो if you go through these notes, you can easily see how we represent alkanes if it's a branched alkane. तो मैंने बारी बारी सारी homologo series cover up करी थी। So these are the 3 examples. First one is an unbranched, is straight chain. The second one is a branched alkane. The third one is also a branched alkane in which the second and the third carbon contain 2 CH3s. ठीक है, clear? Alkenes में you know that we have to represent double bond, and that's how you represent a double bond. बहुत nominal से question आते हैं। क्वेश्चन ये कि सर अगर ये डबल बॉन्ड हम इस लाइन के ऊपर ना बनाएं, लाइन के नीचे बना दें तो बेटा चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, इट्स स्टिल करेक्ट। इफ इट वुड बी अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे यहाँ पर अगर ट्रिपल होता तो मैं एक लाइन और इस तरह से, इट रिप्रेजेंट अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म। क्लियर? सो zigzag फॉर्मेट में 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन बनाए zigzag में,
On the second carbon I have CH3, तो on the second carbon CH3 and first second के दरमियान आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड था, तो I wrote a double bond here, ठीक है? And that's how you represent as alcohol. OH on the terminal carbons, यानी last carbon पे अगर OH है, as you can see it's here, so no need to disclose it in a bracket. But if it is present on the middle carbons like this one, so yes, you have to disclose it in a bracket. सही है, middle carbons पे hydrogen के अलावा कुछ भी आएगा बेटा तो आपने उसे disclose करना है in a bracket. Clear? Very important stuff. That if OH is present on the right hand side, तो आप इसे CH2 के बाद OH लिख देंगे. If it is present on the left hand side, तो आप इसे लिखेंगे HO, ठीक है, like this, HOCH2. अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है और आई एम श्योर कि एग्जामिनर उसे इनकरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, which is CH2OH, ठीक है ना. फर्स्ट कार्बन हैव 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन एंड 1 OH, तो मैंने OH को ब्रैकेट में लिख दिया. एंड देन यू हैव CH2, ठीक है, एंड देन यू हैव CH2OH, ठीक है. तो इसी को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. क्लियर? देखें मैंने नीचे नीचे को लिखा हुआ भी, ठीक है. क्लियर? तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है. आई एम श्योर कि दिस पॉइंट इज क्लियर. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन स्ट्रक्चर form is COOH or CO2H. In a skeleton form, it usually represented like आपको क्लास में भी समझाया कि lot of, ठीक है, like the वाला format follow होना चाहिए. Your skeleton, ठीक है, your skeleton formula should follow the format of the zigzag. यानी ये Y type format आपके पास first one, yes, it is being followed. So I think कि आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको C double bond O ऊपर की तरफ बनाना है तो इट्स गोइंग टू बी, अगर लाइक द टॉप कार्बन पे बनाना है तो C डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ ही बनेगा. अगर बॉटम कार्बन पे बनाना है इट्स गोइंग टू बी डाउनवर्ड, ठीक है. क्लियर? सो दिस इज नाउ अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH या CO2H. So on the left hand side, if you have a carboxylic acid present like this, it must be HO2C. HO2C. Make sure कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें, whatever if or whenever you draw any skeleton formula, make sure कि आप जो है वो नंबर ऑफ कार्बन लिखने के बाद जरूर काउंट करें. एंड देन एल्डिहाइड, यस, CHO इज द रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. अब सवाल वही आएगा, सर हम तो डबल बॉन्ड शो करते हैं तो एल्डिहाइड में क्यों नहीं कर रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों नहीं कर रहे? देयर आर सम होमोलोगस सीरीज जिनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है उनको लिखने का, ठीक है. स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH और CO2H, एल्डिहाइड इज CHO. दैट्स ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसको हम फॉलो करेंगे हमेशा, ठीक है बेटा. एंड देन डबल बॉन्ड के साथ CHO आ गया. CHO, if the aldehyde is present on the left hand side, it must be the mirror image of CHO, यानी OHC. CHO को रिवर्स करके लिखेंगे अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, लाइक दिस, ठीक है बेटा. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. कीटोन इज क्वाइट इजी, CO और C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट करते हैं कीटोन. क्लियर? और अगर कीटोन के अलावा कोई और अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इट कुड बी नाइट्राइल ग्रुप, व्हाटएवर इट इज, तो आप उसे उसी तरह से स्मॉल लाइन के साथ लिखेंगे, ठीक है. याद रखिएगा ये वाली जो लाइन है बेटा, व्हेन यू शो एनी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, इट मस्ट बी अ स्मॉल लाइन. उसकी लेंथ उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की आपने शो करी है, ठीक है. एंड एस्टर इज CO2, दोनों साइड कार्बन चेन की आ जाएगी. और अगर आपके पास एस्टर में कार्बो C डबल बॉन्ड O से पहले ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इट मस्ट बी O2C और OCO. क्लियर? मेक श्योर कि आप यहां पर इस बात का ख्याल रखें कि एस्टर में these two carbon chains are linked together by oxygen. तो यहां पर इसको आपस में इन दो लाइंस को ज्वाइन नहीं करना. दे मस्ट बी ऑक्सीजन बिटवीन दीज टू लाइन. ये कौन सा ऑक्सीजन है? ये वाला, ठीक है ना. यू हैव C डबल बॉन्ड O व्हिच इज दिस वन, उसके बाद एक ऑक्सीजन है एंड देन द चेन गेटिंग कंटिन्यूड, ठीक है. सो मेक श्योर कि यू गिव अ गैप इन बिटवीन देम. चलो अब क्विकली इससे बाहर निकलते हैं. एंड देन एमाइड में
याद रखिए, जैसे एस्टर में ऑक्सीजन होता है, एमाइड में एन। अब उसके बाद हमने इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स करी थी और आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेमिंग पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, यू ऑल नो अबाउट द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सही है बेटा। सो यस, रूल्स ऑफ नेमिंग आपको पता है सारे, so I'm just going through the naming part। आपको पता है, आप सबसे पहले आप जो है फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उसको फंक्शन ग्रुप की पोजीशन और नेम लिख देते हैं, एंड देन यू राइट डाउन द नेम ऑफ द बेसिक ऑर्गेनिक चेन। और नॉमिनल सी नेमिंग आनी चाहिए। is a possibility that they give you the name of the reactant, ठीक है। If it is any complicated name, then they give you the structure of that molecule as well, ठीक है। और अगर कोई complicated molecule आ रहा होगा that carboxylic acid होगा, they will give you the name, sometime the common name, sometime the systematic name। ये systematic name कहलाता है। This is called IUPAC naming, and you know the rules of these IUPAC naming, ठीक है, जानते हैं। And that's the same, the main part is basically the isomerism। That's the do the definition of isomer, molecular formula but different structure। अगर आप सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर तो लिखेंगे, इसने आइसोमर या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछी है, तो ये रेड मार्क वाली पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है। Clear? So this definition important, clear? But if they ask you about the definition of structural isomers, अगर वो आपसे structural isomers की definition पूछ रहा है बेटा, फिर आप सिर्फ half part लिखेंगे। Organic compounds having the same molecular formula but different structure, that's it। O levels वाली definition is the definition of structural isomerism, ठीक है। Structural isomerism are of three types, ठीक है। Chain isomerism, you keep everything same, just make the straight chain a branch, ठीक है। स्ट्रेट चेन को ब्रांच बना देंगे। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ सेम फंक्शन ग्रुप। लेट्स सपोज यू हैव 4 कार्बन, OH इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन, चेंज इट टू सेकंड कार्बन। अब वो थर्ड कार्बन पे नहीं आ सकता नेमिंग के रूल के अकॉर्डिंगली। अगर आप 4 कार्बन में OH को थर्ड कार्बन पे लेके आएंगे तो वो 2-OL बन जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू ड्रॉ the isomers, make sure that you give it a name and you check it either this is same or this is different। Again I say कि जब आसान क्वेश्चन बनाना होता है तो बेसिक इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है। P2 में, mind my words, I am expecting a question from the very basic stuff of introduction to organic chemistry that include isomerism, that include like mechanism, तो खैर मेन पार्ट में ही पूछा जाता है। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड या आइसोमेरिज्म से रिलेटेड या सिंपल एम्पेरिकल की कैलकुलेशन वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल के बाद जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा तो वो आपसे कहेगा कि भाई कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, तो आपको उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे कि ये आइसोमर भी बन सकता है, ये आइसोमर भी बन सकता है, एंड सो ऑन। द लास्ट आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमर इज बेसिकली द फंक्शन ग्रुप आइसोमर। You can change the functional group, ठीक है। And there are very limited example, that's aldehyde and a ketone are the functional group isomers, ठीक है। You have carboxylic acid and ester are the functional group isomers। You have alkene and the cycloalkanes are the functional group isomer of each other, ठीक है। So these are basically the three pairs and that are the normally asking pairs that are the function group isomers of each other, ठीक है। aldehyde और ketone हमेशा, because they have the same carbon hydrogen, they have the same you can say the journal formula, ठीक है ना। इन सारे जो आपके पास आइसोमर्स हैं इन सबका जर्नल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, ठीक है। क्लियर? एंड समरी इज कि this is the summary, this is the important part of the summary बेटा। ये ठीक है, स्क्रीनशॉट बल्कि you have the notes, so just emphasize जिन एरियाज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उन्हें अच्छे तरीके से एक दफा पढ़ लीजिएगा। That following pairs of homologous aldehyde ketone with one oxygen, they are the isomers। Carboxylic acid and ester, they have 2 oxygen atoms, so they both have 2 oxygens, so they are the isomer। Alkenes and cycloalkane, they have the same journal formula which is CnH2n, so they are the isomer, ठीक है। Except functional group isomers, all isomers have the same chemical properties but different physical properties, ठीक है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही चेंज हो जाएंगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर? अच्छा,
कैसे चेंज होती हैं, एक बहुत कॉमन एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, जैसे ब्यूटेन एंड मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन, दे आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है ना, ऐसे ही ना। तो आपके पास C4H कितना हो जाएगा, 4 to the 8 9 10 H10 है आपके पास। सो दे बोथ हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, बाय बिकॉज a straight chain molecule, a straight chain hydrocarbon always have a larger higher boiling point as compared to a branch, because in a straight chain molecule you have a more contact points present between the carbon atoms. यू कैन सी, ये रेड लाइन से मैंने कार्बन कार्बन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं, हमने उनको कवर अप किया है। सो यू कैन सी स्ट्रेट चेन में पर मॉलिक्यूल 4 कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, बट इन अ ब्रांच ये रिड्यूस होके 3 पे पहुंच गया। तो जितनी ब्रांचेस बनती जाएंगी उतना चूंकि कार्बन एक साइड पे अलाइन होते जाएंगे, एंड यू हैव अ लेस कांटेक्ट पॉइंट, दैट्स व्हाई अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ऑलवेज हैविंग अ higher boiling point as compared to a branch hydrocarbon। ठीक है, क्लियर। रीजनिंग पूछेगा तो आप जो है वो रीजनिंग में क्या लिखेंगे, lower boiling point है due to the weaker dispersion force, it has a less contact point between the carbon atom. This red mark is basically the reasoning। अब sometime ऐसा होता है कि you all know कि इस के होगा क्या, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, 1 मार्क तो सेव हो जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, तो आप डिस्क्रिप्शन तो ठीक दे देंगे, बट आप उसकी एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ कर सकते हैं। तो हर जगह नोट्स में आप देख रहे हैं कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो मेक श्योर दैट यू डू राइट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद उसने पॉसिबल आइसोमर्स, अब एग्जाम में अगर कोई लाइक यू कैन से एक सिंपल सा मॉलिक्यूल आता है विद 5 or 6 कार्बन एंड दे आस्क यू टू ड्रॉ ऑल दी पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो जरा उसको क्विकली ड्रॉ करके चेक कर लीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि यू विल कम अप विद द राइट आंसर। सम टाइम वो आपसे कहता है कि 2 आइसोमर ड्रॉ कीजिए, 3 आइसोमर ड्रॉ कीजिए, मेनली अल्कोहल्स में ये पूछा जाता है, क्योंकि अल्कोहल में फिर जब आप आइसोमर बनाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, सम टाइम टर्शरी में भी कन्वर्ट हो जाता है, और उनकी ऑक्सीडेशन डिफरेंट होती है। तो दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन। इफ डन द ऑर्गेनिक, तो आपने ऑर्गेनिक में इस थीम को भी फॉलो किया होगा। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इज इम्पोर्टेंट, और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं, इन पर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेस करती है। ये अच्छा आता होगा तो फिर बात की बात है कि हाँ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए हम NaBH4 यूज करेंगे, LiLH4 यूज करेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये बहुत आगे की बात है। बेसिकली दिस बेसिक स्टेप वो तो हो ही जाता है आराम से, ठीक है, क्लियर। एंड देन द स्टीरियोआइसोमेरिज्म, डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म पूछी जा सकती है, बिल्कुल। स्टीरियोआइसोमेरिज्म कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। अब आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करेंगे, दे डू हैव द सेम स्ट्रक्चर। अपना स्ट्रेट चेन को ब्रांच बनाते हैं, इट्स जस्ट अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ स्पेस, 3D में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। And there are 2 types of structural stereoisomer, ज्योमेट्रिकल जिसको हम सिस और ट्रांस भी कहते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली एल्कीन्स में होता है, सिर्फ ऑप्टिकल जिसके लिए कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट जरूर। ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस बहुत आसान है, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सो दिस हाइलाइटेड जो ब्लैक से लिखा हुआ है, दिस इज द आंसर। क्यों शो करता है? बिकॉज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अलोंग द डबल बॉन्ड, ठीक है। Single covalent bond can freely rotate to 360-degree angles, so molecules rotate and they will come back to their original position. But you can, if you imagine, हमने bonding में किया था ना अभी revision में भी, कि you have a sigma bond and the one electron of a pi bond is above that sigma bond and one is below, and these pi bond basically restrict the rotation। अब वो freely rotate नहीं कर सकता वरना pi bond break हो जाएगा। So there's a half rotation, and because of this half rotation, the group present below the plane going above the plane and then coming back to below the plane, so ये half rotation show करते हैं, ठीक है। नीचे below the plane से यानी ये B जो है ये A की तरफ चला जाएगा और A जो है वो B की तरफ आ जाएगा, and that's how there is a concept arises which is basically cis and a trans, ठीक है, क्लियर। तो cis trans ड्रॉ करना बहुत आसान है, cis trans का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। मैंने आपको बहुत सिस ट्रांस समझाने के लिए मैंने आपको कहा था कि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप की बात जो है वो उसको थोड़ा सा अपने जहन से निकाल दीजिएगा। और हम आते हैं
Just wait for one. Okay. Now, similar function group की बात को then से निकाल दीजिएगा. Let's suppose if I give you an example and I ask you to draw the isomer, draw the geometrical isomer, and this is basically CH3, CH double bond, CH, CH2, CH. These are the two carbons bonded to a double bond. आपने इन दोनों carbons को displayed form में लिख दिया. Now the first carbon, which is this one, it has one hydrogen. आपने एक साइड पे लिख दिया. On the second side you have CH3. आप इसे H3C भी लिख सकते हैं. ज्यादा अच्छा ये है कि आप इसे H3 बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड शो करना ज्यादा बेहतर है. लेकिन अगर आप इसे CH3 भी लिख देते हैं इस तरह करके तो ये भी चल जाएगा. ठीक है, कोई गलत नहीं है. लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप डिस्प्ले शो कर रहे हैं तो आप इस तरह ड्रॉ करें. ठीक है. ऑन द सेकेंड कार्बन विच इज दिस वन, you have one hydrogen and one CH2 CH3. अब सवाल ये है कि हम CH2 CH3 को C2H5 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा बेटा, और आराम से आप कर सकते हैं. नाउ लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट कार्बन, ये वाला. इस फर्स्ट कार्बन का स्मॉलर ग्रुप कौन सा है? द फर्स्ट कार्बन स्मॉलर ग्रुप इज दिस वन. ठीक है, दिस इज अ स्मॉलर ग्रुप और स्मॉल इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एमआर की बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है सब. ठीक है, तो स्मॉलर ग्रुप कौन सा है? ये वाला. एंड दिस वन इज अ लार्जर ग्रुप, ये इसका लार्जर ग्रुप है. क्लियर? ऑन द अदर कार्बन, यस, अगेन दिस वन इज स्मॉलर ग्रुप and this one is a group are on the same side of the plane below the basically a cis form. अब आपको C डबल बॉन्ड C आप यहाँ लिख दो CH2 CH3, कीप दिस हाइड्रोजन सेम. अब देखो गड़बड़ ये करते हो कि दोनों को फ्लिप कर देते हो. भाई किसी एक को फ्लिप करना है ना, जब भी तो लार्जर और स्मॉलर अलग अलग होंगे. नाउ दिस इज बेसिकली द ट्रांस. क्लियर? अब अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता, डिफरेंस ये होता कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी OH लगा होता, CH2 CH3 लगा होता एंड हाइड्रोजन एंड CH3. ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारे ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं. अब आपने स्मॉलर ग्रुप आइडेंटिफाई किया व्हिच इज दिस वन. MR एक AR1 होता है हाइड्रोजन का, CH3 इज 12 13 14 15, तो दिस इज अ स्मॉलर ग्रुप. नाउ इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है. तो ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1, सो ये तो OH है 17. MR ऑफ OH इज 17 एंड MR ऑफ दिस वन इज 29. ठीक है, C2H5 का MR कितना है? 29. तो स्मॉलर ग्रुप कौन सा हुआ? स्मॉलर ग्रुप इज दिस वन. एग्जाम में आपको सर्किल नहीं करना, बट यहां पर मैं सर्किल. एज बोथ ऑफ दीज स्मॉलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, सो दिस इज द सिस फॉर्म. और अगर इनमें से कोई एक स्मॉलर ग्रुप या लार्जर ग्रुप, whatever you feel convenient, comfortable, जिसमें भी हो उसे हाईलाइट कर लीजिए, उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड देन मार्क इट. ठीक है, क्लियर? So that's how you're going to write. और एक have a skeleton form. If you're talking about the skeleton form, the skeleton form में हम zigzag format को ही follow करते हैं. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि zigzag format ट्रांस में तो follow होता है, लेकिन सिस में zigzag format follow नहीं होता. ठीक है, दिस इज बेसिक. ठीक है, अगर सिस ड्रॉ करना होगा इसी का तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा. ठीक है, इफ यू रिमेंबर एम्फसाइज हो जाएगा. कहाँ गया भाई इंट्रो? दिस इज दैट्स हाउ सेस एंड ट्रांस सारी आइडेंटिफिकेशन की सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में किया.
सॉरी बेटा। ओके, वापस आते हैं। So I said any carbon which is bonded to a double bond, if it contain two similar group, two hydrogen लगे हुए हैं या दो CH3 लगे हुए हैं या OH लगे हुए हैं, तो वो कार्बन से ट्रांस नहीं बनाएगा। So ये जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, this is prop1ene या 1-propene, this molecule do not show cis trans isomerism as the carbon bonded to a double bond, this carbon contain two hydrogen। ठीक है, क्लियर। तो इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, इसका पॉसिबल होगा, दोनों तरफ सिमेट्री जरूर है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज सिमेट्रिकल टू दिस वन, बट द सिस ट्रांस इज पॉसिबल। ठीक है, इन अ सिमिलर वे स्केलेटन में मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बताया था कि अगर आपको किसी भी स्केलेटन फॉर्मूले में अलोंग द डबल बॉन्ड चेयर टाइप फॉर्मेशन नजर आ रही है, लाइक दिस, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना, इट लुक लाइक अ चेयर, so it means that they are representing a transform, and if it look like a boat then it is basically a cis form। तो ये बोट और चेयर से आपको सिस और ट्रांस स्केलेटन में याद रहेगा। इट माइट बी पॉसिबल दैट इफ दे ट्राइंग टू मेक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, तो वो आपसे ये कहे कि भाई स्केलेटन में ड्रॉ करें, लेकिन कम है, आज तक तो नहीं पूछा गया, बट यू शुड नो अबाउट दिस स्टफ। ठीक है, क्लियर। So that's how you represent. So this one is a trans because you can see the chair type here along the double bond, and you can see both types. So it's ठीक है, if any alkene contain more than one double bond, carbon, then the formula 2n square is used to identify the number of cis trans isomer, where n is the number of carbon। याद रखिएगा, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो और उस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हो, तो आप उसे एन में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट कार्बन डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दोबारा सुनिए, बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं, लेकिन आपने देखा कि लास्ट वाला डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, यानी दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, तो 2 पावर n में आप उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इट्स अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यानी डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड हैं और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड कॉर्नर पे एक जैसी चीज है, तो एक आइसोमर माइनस हो जाएगा। कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आए हैं, लेकिन दिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, विल डू इट इन एमसीक्यूज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ओनली एल्कीन शोज इस ट्रांस आइसोमर, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन अलोंग द पाई बॉन्ड, ये बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों डिफरेंट हो जाती हैं? बिकॉज ड्यू टू द रोटेशन समटाइम द पोलर ग्रुप, सिस में पोलर ग्रुप एक साइड पे अलाइन हुए होते हैं, ठीक है, तो पोलर ग्रुप एक साइड पे अलाइन होने की वजह से दे आर मोर पोलर। ये की पॉइंट याद रखिएगा, सिस फॉर्म इज यूजुअली मोर पोलर एंड इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट इफ इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन की बात नहीं हो रही, ठीक है। इन अ ट्रांसफॉर्म, चूंकि आपके पास जो है वो पोलर मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, पोलैरिटी गेट कैंसल आउट, सो दे हैव अ बेसिकली लेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिस फॉर्म have higher boiling point as compared to a transform due to the presence of larger group, yeah, if it's a polar molecule, polar group on the same side of the plane, प्लेन के सेम साइड पे होंगे तो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, और उनकी पोलैरिटी, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी एंड दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज द समरी, एंड दिस समरी इज, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा बेटा, एंड आई एम श्योर कि समरी जो है वो आपको सम अप कर देगी सारी चीजें। ठीक है, नोट्स में भी प्रेजेंट है और आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज बेसिक, यहाँ देखिए मैंने आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज किया 2 पावर n ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल कार्बन इज इंपॉर्टेंट। कायरल कार्बन की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है इस साल कि व्हाट इज मीन बाय द टर्म कायरल, तो आप बोलेंगे द कार्बन व्हिच इज बॉन्डेड टू 4 different groups, or the carbon on which 4 different groups are attached. Hydrogen is a different group as compared to CH3, 4 different चीजें लगी हुई हों तो वो कायरल। एनी कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड कैन नेवर बी कायरल। तो कायरल कार्बन तो आइडेंटिफाई करना हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। मैंने आपको एम्फेसाइज करके बताया था कि स्केलेटन फॉर्म सिर्फ आप उन कार्बन्स को चेक करेंगे जहां पर ये वाई वाला इंटरसेक्शन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना, ये वाई वाला।
सिर्फ आप इन कार्बन को फोकस करेंगे कि आपने ये कायरल कार्बन हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, तो इसमें कायरल कार्बन नहीं रहा। बेंजीन रिंग से रिलेटेड हमने कुछ बात करी थी कि इन अ बेंजीन रिंग ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, सारे के सारे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, सो दे कैन नेवर बी कायरल, कभी भी कायरल नहीं हो सकते, ठीक है, ना होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि we normal light is consist of electrical and magnetic field, ठीक है, and they are at an 18 no sorry 90 degree to each other। नॉर्मल लाइट में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, ये कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल लाइट, ठीक है। व्हेन यू पास इट थ्रू अ प्रिज्म और थ्रू अ पोलराइजर, दोनों सेम प्लेन पर आ जाती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कब हम यूज करते हैं कि optically active compound are the organic compounds that have a chiral carbon present, पहली बात। So they have a optical isomers, and these optical isomers rotate the plane polarized light either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction। जब आप plane polarized light पास करेंगे तो एक mirror image clockwise direction में rotate करेगा, दूसरा mirror image anti। So if any molecules show the rotation of plane polarized light, we used to say that this molecule is optically active। So all optical isomers are optically active, ठीक है। तो ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक दफा जरूर देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है? A molecule that can rotate a plane polarized light either in a clockwise or anti-clockwise direction are called optically active। They might be possible कि वो optically active की आपसे कॉन्सेप्ट को पूछ ले, ठीक है। दैट्स हाउ यू ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब याद रखना ऑप्टिकल आइसोमर्स में सिर्फ लिटरली फ्लिप हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, यू कैन नॉट चेंज द पोजीशंस ऑफ दीज ग्रुप। आप ये नहीं कर सकते कि आप OH एक में ऊपर लिखा OH तो दूसरे में ऊपर लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? मुझे अनम्यूट करके बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? जी सर। हाँ बेटा, थोड़ी सी बीच में डिस्टरबेंस हो सकती है, इंटरनेट आपको पता है कि मैं थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी, तो मुझे प्लीज अनम्यूट करके बता देना, मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया, सही। वालेकुम सर, आपकी ओके, आवाज सो नहीं आ दिस रही। इज आ रही है ना, बाकी लोगों को तो आ रही है भाई। आ गई सर, आ गई। तंग कर रहे हो ना मुझे, चलो कोई बात नहीं, आ गई, चलो अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ऑप्टिकली एक्टिव का। आ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि छोटी मोटी सी चीजें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पूछ ली जाए। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लाइट अनपोलराइज्ड लाइट होती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक की 90 डिग्री पे होती है, जब आप उसे प्रिज्म से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं जिसमें कायरल कार्बन मौजूद होते हैं, तो वो रोटेशन शो करती है आइदर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। सवाल ये कि हम ये काम करते क्यों हैं भाई? देखो, आई सेड के मेनी ऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, एंड उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, यानी मिरर इमेजेस होते हैं। एंड यू नो दैट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें ड्रग की एक्टिविटी से रिलेटेड रिएक्शन भी होते हैं, दे आर बेसिकली ओरिएंटेशन बेस्ड, एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन शेप बेस्ड होता है ना। तो समटाइम ऐसा होता है कि एक ऑप्टिकल आइसोमर अगर एज अ ड्रग काम कर रहा होता है तो सेकंड ऑप्टिकल आइसोमर इज एक्टिंग, इज क्रिएटिंग अ साइड इफेक्ट। तो हम इसे चेक करते हैं विद अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है और क्या इसका एक ही टाइप का आइसोमर है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज आइसोमर्स। मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनएंशियोमर की टर्म भी यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दोनों के मिक्सचर को इनएंशियोमर की टर्म यूज करते हैं, क्लियर? ठीक है जी, यहां तक तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनको पहचानना। अब आपको पता है कि P2 में ये पार्ट आएगा। P2 में बोलेगा भाई
क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कार्बन मार्क करें, आपने मार्क कर दिया, ब्लू लाइन से मॉलिक्यूल लिखा हुआ था, आपने मार्क कर दिया। उसके बाद बोलेगा ड्रॉ the optical isomers of this one, so you have to draw exactly the same diagram जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, बिल्कुल इसी तरह से इन्वर्ट करके आपने इसको लिखना होगा। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आगे चलते हैं, और ऑर्गेनिक mechanisms, very important, No. rather detail how to draw the mechanism of all basic. क्या हुआ? Second, Yes, sir. you should know the all the mechanisms, ठीक है, किस तरह से आपको जो है वो इनके सबसे पहले टाइप ऑफ फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, so any positively charged particle or the electron deficient are basically the electrophile. इलेक्ट्रोफाइल की क्वालिटी ये है कि it required both of the bonding electron from the carbon. इसको दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन से ही चाहिए होते हैं। इट्स नॉट अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। तो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? कार्बन प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियोफाइल, any particle that have a lone pair of electron or the negative charge, ठीक है, they are the presence of lone pair is compulsory, negative charge ना भी हो, यानी H2O can act as a nucleophile, ammonia can act as a nucleophile because it has a lone pair of electron। ठीक है, क्लियर। होमोलैटिक फिशन जो है वो बेसिकली इक्वल ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, जिसके रिजल्ट के तौर पे फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल से रिलेटेड बात अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करी थी कि फ्री रेडिकल का मतलब होता है एनी एटम that can एटम ग्रुप 7 वाले एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन का फ्री जरा रिपीट करके, आपकी आवाज बीच रेडिकल में बन से ना सकता है, ग्रुप 7 का बन सकता है जब कार्बन, एक सेकंड में इंटरनेट चेंज करता हूँ बेटा, ये जो आवाज गायब होती है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है बेटे, एक मिनट। क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड? जी सर। ओके बेटा, अब मुझे प्लीज बता देना अगर आवाज डिस्टर्ब हो। आई नो इट्स बिट इरिटेटिंग, लेकिन इरिटेटिंग मेरे लिए भी होता है क्योंकि दिस इज द थिंग, आई कांट हेल्प इट आउट। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू रहता है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि बेसिकली हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे थे। फ्री रेडिकल इज एनी एटम दैट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल एटम कैन बी अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की कंडीशन ये है कि आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल में या शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सारे नहीं हो सकते, ग्रुप 7 वाला फ्री रेडिकल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है तो कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं अगर उसने, तो CH3 का मिथाइल फ्री रेडिकल हो सकता है। तो सारी फ्री रेडिकल के लिए एक प्राइमरी कंडीशन याद रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ये this is basically the concept map of all types of reaction. Now you know about the reaction that could be substitution, addition, elimination, oxidation. ठीक है, substitution के लिए हमने एक आसान सी एग्जांपल सीखी थी, सॉरी एक आसान सा तरीका हमने सीखा था, वो ये कि इन सब्स्टिट्यूशन यू हैव 2 रिएक्टेंट्स एंड 2 प्रोडक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होते हैं, एडिशन में 2 रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट, एलिमिनेशन में सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स। दोबारा सुनिए, सब्स्टिट्यूशन 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट, एडिशन 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, एलिमिनेशन सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। डन। जैसे अल्कोहल की एलिमिनेशन से एल्कीन और वाटर बनता है, ठीक है ना, सो दैट्स हाउ इट्स वर्क इट आउट। और अगर सब्स्टिट्यूशन में आपके पास, आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन में अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसी भी हैलोजन के साथ और एल्केन है,
तो इट्स एल्केन ना भी है अगर हाइड्रोजन किसी हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोजन विद अ हैलोजन, H की जगह Cl आ रहा है, H की जगह इवन Br भी आ रहा है, दैट्स कॉल्ड अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक में कोई नेगेटिव नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा, OH की जगह Cl आ गया, Cl की जगह OH आ गया, व्हाटएवर इट इज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा बेंजीन में होती है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर A2 सिलेबस। तो बेंजीन के जितने रिएक्शन है ऑल दोस आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमें यहाँ AS लेवल पे नहीं पढ़ने। एडिशन, एडिशन के लिए मैंने कहा कि यू हैव टू रिएक्टेंट एंड अ सिंगल प्रोडक्ट, and if one of the reactant is an alkene, it's an electrophilic addition. If one of the reactant is an aldehyde or a ketone carbonyl compound है तो it's a nucleophilic addition। ये याद करने का तरीका है। एलिमिनेशन अल्कोहल में भी हो सकती है, हैलोजन एल्केन में भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन अल्कोहल की, एल्डिहाइड की भी हो सकती है। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं। क्लियर। सो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और अब तक तो पूरी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कर चुके हैं, तो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेसिक इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना आना चाहिए। मैकेनिज्म में याद रखिएगा देयर आर थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैकेनिज्म एंड दे वर्थ इंडिविजुअली 1 मार्क। ठीक है, समटाइम तीनों के इंडिविजुअली 1 मार्क होते हैं, समटाइम तीनों के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, समटाइम तीनों का 1 मार्क होता है, और तीनों में से कोई एक चीज भी मिस कर दोगे तो वो 1 मार्क नहीं मिलेगा। क्लियर। सो कर्ली एरोस, partial charges, lone pair, curly arrows, partial charges and lone pairs, these are very important in terms of mechanism। ठीक है, और अगर आपको याद हो मैकेनिज्म में हमने सीखा था कि मैकेनिज्म में हम बेसिकली कर्ली एरोज ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास बाकी मैकेनिज्म कहाँ गए इसके, जस्ट वेट वेट। सॉरी, यहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो कर्ली एरोज में ये वो पॉइंट है जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा था कि बेसिकली आप सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इफ यू आर शोइंग अ मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, या लोन पेयर से दूसरे कार्बन की तरफ ड्रॉ होती है। क्लियर। और ये वाला जो सेकंड पार्ट है दिस इज ओनली इन फ्री रेडिकल, ये जो सिंगल हेडेड एरो ये सिर्फ फ्री रेडिकल में ही फॉर्म होता है। ठीक है, सो हम यहाँ थे फ्री रेडिकल में, आपने देखा दैट्स द कॉमन एग्जांपल, और इसका इसका मैकेनिज्म आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। मैकेनिज्म मैं 10 बार रिवाइज करवा दूंगा, आपको कभी भी नहीं आने वाला अनटिल और अनलेस यू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। तो जब तक खुद से ड्रॉ नहीं करोगे बेटा, ये कभी भी आपको रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट कुड बी एडेड, X2 टाइप मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनमें इंड्यूस पोलराइजेशन होती है। ठीक है, ब्रोमीन कमिंग क्लोज टू द डबल बॉन्ड एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट इट गेट पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, एंड देन देयर इज अ हेटेरोलिटिक फिशन टेकिंग प्लेस। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन होगा, सेम मैकेनिज्म, क्लोरीन होगा, सेम मैकेनिज्म। ठीक है, इफ यू हैव अ पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl, H2O और HBr, देन मैकेनिज्म में इंड्यूस पोलराइजेशन नहीं होगी बिकॉज यू हैव अ परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस हाइड्रोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, डबल बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड यू हैव अ कार्बोकैटायन फॉर्म। मेक श्योर दैट यू नो दैट कि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद Cl नेगेटिव कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, क्लोरीन जाके एड अप हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपके पास सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन्स में होती है। ठीक है, नॉर्मली HCN की एडिशन इज अ कॉमन एग्जांपल, अगेन हाइड्रोलाइटिक फिजन होता है।
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पोलर कोवलेंट बॉन्ड CN नेगेटिव अटैक करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास O नेगेटिव और CN जाके ऐड हो जाता है। O नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव पे अटैक करता है, OH अटैच हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, सॉरी एग्जांपल्स में इट कुड बी एनी एल्डिहाइड, इट कुड बी एनी कीटोन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 मैकेनिज्म आता है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए। प्राइमरी हैलोजन अल्केन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलोजन अल्केन, it's the same concept as alcohol. If the carbon which is bonded to a halogen, if it's attached to 3 hydrogen or just one R group, कोई R group ना हो या एक R group हो, so it's called the primary halogen-alkane. और अगर दो R group लगे हुए, this is the example. So this is called the secondary halogen-alkane. और अगर तीन R group लगे हुए हों, तो it is a tertiary halogen-alkane. ठीक है, क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि प्राइमरी halogen-alkane जो है वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है, विच इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। क्लियर? टर्शियरी हैलोजन अल्केन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसमें पहले कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा कार्बोकैटाइन दो जगह बन रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म लिख के रिवाइज करने, बेटा मैकेनिज्म 3 to 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सेइंग इट अगेन, स्पेशली जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मैकेनिज्म इन शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज होनी चाहिए। लास्ट की पॉइंट ये लिखा हुआ है कि SN1 बता दिया हमने कि भाई वो SN2 बता दिया फॉलो होगा, प्राइमरी में SN1 फॉलो होगा, इसमें टर्शियरी में तो सेकेंडरी इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ SN1 SN2, ठीक है। इट कुड बी SN1, इट कुड बी SN2। वो आपको हिंट दे देगा, अगर उसने SN1 बनवाना होगा तो आप बोल देगा कि इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। या SN2 बनवाना होगा तो बता देगा कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं हो रहा। तो आप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द सेकेंडरी हैलोजन अल्केन के वो SN1 फॉलो करेगा या SN2 फॉलो करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, उफ, थक गया मैं। चले आगे चलते हैं, और अब बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको याद होंगे। क्विकली यहाँ पर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो समरी पेज है उससे हम इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो यस, एल्केन के बेसिकली एल्केन से एक ही केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है, व्हिच इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्रैकिंग इज अनदर केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल is being broken down into a smaller molecule. There are two types of cracking processes. जब आप नोट्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। One is called the thermal cracking, जिसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज होता है। The other one is a catalytic cracking, जिसमें हाई टेम्परेचर और SiO2 और Al2O3 कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रैकिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्रैक हो जा रहा है। पूछेगा व्हाई क्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट, ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है हाइड्रोकार्बन में, तो आप बोलेंगे बिकॉज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर एल्केन्स हैव मल्टीपल यूजेस। यानी एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है तो उसका एक ही कोई यूज होगा, जैसे ब्यूटेमिन हो गया या आपके पास नेप्था हो गया, बट आप उसे क्रैक कर लेंगे तो कैरोसिन कहीं यूज हो जाएगा, डीजल कहीं यूज हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस कहीं और यूज हो रही है। सो यू हैव स्मॉलर एल्कीन्स हैव मल्टीपल यूजेस, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपको कोई एल्केन गिवन है लॉन्ग चेन और आपको उसको क्रैक करना है, तो यू मेक वन एल्केन एंड वन एल्कीन। बट इफ यू हैव टू शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल, ठीक है, सो आप दोनों एल्कीन बनाएंगे, फिर आप एल्केन नहीं मिलता, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रैकिंग एल्केन एंड एल्कीन एंड समटाइम हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो फिर एल्केन नहीं मिलता, फिर दोनों जो बाकी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एल्कीन्स होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड कंबस्टन, कंबस्टन तो किसी की भी हो सकती है। एल्कीन में वही है, एडिशन ऑफ X2 टाइप मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं के एडिशन ऑफ हैलोजन हो सकती है, विच इज क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आपने क्या किया, जिन दो डबल बॉन्ड पे कार्बन पे डबल बॉन्ड था, आपने उस पे एक एक क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है। इट कुड बी कन्वर्टेड टू एन एल्केन बाय हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रोपीन प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा, दूसरे पे क्लोरीन आके लग जाएगा, ऐसे ही ना, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो अल्कोहल आप
आपको बनाना है तो H2O H3PO4 प्रोडक्ट कार्बन है bonded to a double bond and you have to make a major product, then add hydrogen on the carbon that already contain more hydrogen. ठीक है, जैसे इस मॉलिक्यूल में कौन सा कार्बन है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी है, सो यू कैन सी दिस इज अ कार्बन दैट ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन। तो अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनानी है तो आप इसी पे हाइड्रोजन लगाएंगे और क्लोरीन लगाएंगे यहाँ पर, यानी इन दो स्ट्रक्चर में इफ आई आस्क यू व्हिच वन इज अ मेजर प्रोडक्ट तो आप बोलेंगे द टॉप वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द बॉटम वन इज अ माइनर प्रोडक्ट। हाइड्रोजन इज एडेड ऑन द कार्बन दैट ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए मेजर प्रोडक्ट ये एरो थोड़ा सा कन्वर्जन में नीचे आ गया, इस एरो को यहाँ होना चाहिए, जस्ट करेक्टेड, अदरवाइज ये आपको ठीक है बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन मस्ट बी एडेड ऑन द कार्बन दैट ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन। तो H2O का H लगाया यहाँ पर, OH लगाया यहाँ पर, तो CH3CH OH CH3 बन गया विच इज द मेजर प्रोडक्ट। बस इतना याद रखोगे, HCl HBr H2O का हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगाओ जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड इट्स ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन, तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। एल्कीन की सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कीन की ऑक्सीडेशन, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट एसिड FiKMnO4 के साथ डायोल फॉर्म होगा, टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। और हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4 के साथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट देगा। ये थोड़ा सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें मुझे बात करने की जरूरत है, ठीक है, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल बेटा। ओके बेटा, सॉरी, ओके। सो मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मतलब फील हो रहा है कि हो सकता है विच इज, और कुछ बच्चों ने रेज भी किया था कंसर्न अबाउट ये तो मेजर माइनर प्रोडक्ट वाली सारी चीजें, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन लगाया कहाँ पे, मेजर हाइड्रोजन मस्ट बी एडेड, मार्कोनिकोव रूल है। इसकी एक्सप्लेनेशन समटाइम रीजन पूछा जाता है, तो दिस इज द रीजन। आप तो पूछेगा क्यों मेजर प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, तो इन केस ऑफ मेजर प्रोडक्ट द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म व्हिच इज मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ two electron donating alkyl group, making carbon less positive and more stable. This is called inductive effect. ज्यादा अगर अब डिटेल आपको इसकी नहीं पता तो आई रिकमेंड यू जस्ट मेमोराइज द इंडक्टिव इफेक्ट। और क्यों स्टेबल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ज्यादा बनता है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, ठीक है। एडिशन ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं करना बेटा। माइल्ड ऑक्सीडेशन में आपने दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है उन पे OH लगा देना है, तो आसान सी बात है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज समथिंग वेरी, तो देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशंस, आपको एम्फसाइज बारी बारी देखना है। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड इफ इट कंटेन 2 हाइड्रोजन, सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलवेज डबल बॉन्ड से स्प्लिट होगा, ठीक है, एंड you'll get 2 different प्रोडक्ट। The carbon which is bonded to a double bond, if it contain 2 hydrogen, तो carbon dioxide बनके evolve हो जाएगी, ठीक है। If it contain 1 hydrogen, keep everything same, just make this CH CO2H, ठीक है। क्यों है कैसे उसको छोड़ दो, बस इसको CH को CO2H में कन्वर्ट कर देना। If the carbon which is bonded to a double bond, if the carbon bonded to a double bond contain 2 R group, तो आपको इस कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। These are the common examples हमने क्लास में करी है, you can see, and these examples what concept came here, it's always 2 product form, और फिर उन 2 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है। KMnO4 वाला रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्कीन का, ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है AS में, स्पेशली हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4 का, बल्कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन A2 एज वेल, ठीक है। तो A2 में भी पूछा जाता है और AS में भी पूछा जाता है, ज्यादातर ये A2 में पूछा जाता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर सिर्फ आपके पास कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं मिल रही इन दिस केस, ठीक है। यू हैव बोथ ऑफ दीज कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड कंटेन 2 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहा है।
यहाँ पर ये ब्रेक होगा इस जगह से, यहाँ से मॉलिक्यूल विल ब्रेक. This carbon will convert into carboxylic acid, so it will become CH3, CO2H. The other one will convert into carboxylic acid. If they ask you to write down the identity of an organic molecule, then the identity is CH3OH. लेकिन अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है तो आपको टू करके लिखना है. ठीक है, क्लियर. स्केलेटन फॉर्म में भी सिर्फ आपने स्केलेटन फॉर्म आपसे उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकती until or unless you write down the missing hydrogen or the write down the hydrogen which is not represented here with a pencil. तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस कार्बन से जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है कितने हाइड्रोजन है. तो इफ वन हाइड्रोजन आप उस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दें तो ये जो मैंने जिगजैग एरो बनाया है बेटा ये वाला, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ से मॉलिक्यूल टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है. क्लियर. एंड देन द एडिशन पॉलीमराइजेशन टिपिकल ओ लेवल स्टफ है. दे माइट गिव यू अ chain of a polymer and they ask you to write down the repeat unit and a section repeat unit and a monomer. तो make sure कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी section of polymer में a repeat unit is always consist of how many carbons? 2 carbon from the straight chain. तो आपने 2 carbons के box को अलग कर देना. This is basically the repeat unit. और फिर आपने क्या करना है, इन्हीं 2 carbons के दरमियान डबल बॉन्ड बना के मोनोमर बना देना है. ठीक है, क्लियर. ओ लेवल्स में बहुत अच्छे से हम सीख कर आते हैं. So this is basically alkene. और एल्कीन की बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ एडिशन रिएक्शन, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्कीन, इसलिए एल्कीन को बहुत अच्छे तरीके से एम्फसाइज करके कीजिएगा. एंड देन हैलोजेनो एल्केन बहुत आसान है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेनो एल्केन इज रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिएक्शन विद KCN. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपने हैलोजेनो एल्केन को अमाइन में कन्वर्ट करना है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया हाई प्रेशर पे ऐड कर दें, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने हैलोजेनो एल्केन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, रिएक्ट इन 2 कंडीशंस. द सेम रिएजेंट हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, बट द सॉल्वेंट इज डिफरेंट. इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन Cl की जगह OH आ जाएगा. इफ द सॉल्वेंट इज ethanol or any other alcohol, not water, in the absence of water, then it is a elimination reaction, alkene form होगा और आपके पास जो है वो HCl eliminate हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. सो याद रखिएगा, लेफ्ट साइड इज एलिमिनेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट साइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. KCN इज अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl की जगह CN आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस लीड टू अ चेन लेंथनिंग रिएक्शन. And this CN, which is nitrile, can also be converted into a carboxylic acid with dilute sulfuric acid and into a amine with sodium and ethanol. Reduction भी हो सकती है, hydrolysis भी हो सकती है. Right side hydrolysis, you can see I started with 3 carbon. I started with a 3 carbon halogen alkane and right side पे ended up with 4 carbon carboxylic acid. जब भी आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, make sure that you know that it always going through a nitrile reaction. ठीक है, और सोडियम एंड इथेनॉल की जगह हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है. NaBH4 और LiH4 which are they are the reducing agent, ये यूज नहीं हो सकते. सोडियम एंड इथेनॉल की जगह हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो you always write sodium and ethanol. ठीक है, and then the alcohol again, alcohol to halogen alkane is important. So alcohol का रिएक्शन जो है वो आप halogen alkane के साथ like PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा. PbR3 PI3 के साथ करेंगे तो आयोडीन या ब्रोमीन आ जाएगा. ठीक है, अल्कोहल की एलिमिनेशन यानी अल्कोहल टू एल्कीन के लिए द मोस्ट कॉमन रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. उसके अलावा AlIO Al2O3 SiO2 porous spot pumice catalyst, it could be anything, but the most common and important concentrate sulfuric acid and Al2O3. सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस बॉल. याद रखिएगा सोडियम मेटल कैन रिएक्ट विद ऑल टाइप ऑफ OH. ठीक है, वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के साथ रिएक्ट करता है. कार्बोनेट्स ओनली रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस का एक ही टेस्ट है व्हिच इज ऐड एनी कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्लियर. कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही टेस्ट. एंड स्टेरिफिकेशन, जब एस्टर फॉर्म हो जाता है तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में सोडियम सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल बनता है. एसिड हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वापस से मिल जाता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन में याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड,
प्राइमरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आप माइल्ड हीट फॉलोड बाय डिस्टिलेशन लिखेंगे, हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन लिखेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल केमिनोफोर से भी हो सकती है और K2Cr2O7 से भी हो सकती है। अल्कोहल दोनों से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, बट एल्कीन कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज विद केमिनोफोर। ठीक है, K2Cr2O7 से एल्कीन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। K2Cr2O7 इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल अगर वीकर से हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर से तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर से हो रहा है वो वीकर से होने के चांसेस कम है और नहीं है इन केस ऑफ एल्कीन। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। एंड देन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड में रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिडक्शन है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों LiAlH4 और NaBH4 दोनों से रिड्यूस होने के बाद प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में चले जाते हैं। ठीक है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में वापस चला जाता है और एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, HCN के साथ रिएक्शन होता है तो OHCN, इनको हम हाइड्रोक्सी नाइट्राइल कहते हैं। हाइड्रोक्सी इज द OH ग्रुप और नाइट्राइल इज द CN ग्रुप। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो CN की जगह CO2H आ जाता है। सोडियम एंड इथेनॉल के साथ CH2N, वही चेन लेंथनिंग रिएक्शन है। एक अलग से OH लिखा हुआ ना, देखो, इफ यू हैव अ चेन लेंथनिंग रिएक्शन यानी रिएक्टेंट में आपके पास जो है वो एक कार्बन कम है, प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन है और एक कार्बन ज्यादा है, तो इट्स अ चेन लेंथनिंग रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर एक कार्बन के साथ के ज्यादा के साथ साथ आपको एक OH भी नजर आ रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग मटेरियल आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, क्योंकि हाइड्रोक्सी नाइट्राइल से हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ही जाता है। OH ग्रुप हेलोजनो अल्केन के केस में प्रेजेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट। ठीक है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, DNPH डालते हैं, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलते हैं। सिर्फ एल्डिहाइड के लिए फेलिंग, टॉलिन्स या K2Cr2O7 है, क्योंकि एल्डिहाइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज सो दे चेंजेस कलर। ठीक है, याद होना चाहिए। इनके रिएक्शन भी एक दफा आपको देखने पड़ेंगे। ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट इज वेरी स्पेसिफिक और इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं ट्राई आयोडोमीथेन के, और पता नहीं क्यों ट्राई आयोडोमीथेन, वैसे तो नाम से ही इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पास ट्राई आयोडो का मतलब 3 आयोडीन लगे हुए हैं, तो एक ही हाइड्रोजन लगा होगा ना भाई। CHI3 इज बेसिकली ट्राई आयोडो मीथेन, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। It only possible if you have a ketone in which you have C double bond O on the second carbon. ऐसा कीटोन जिसमें C double bond O second carbon पे हो, that's called the methyl ketone. Prime secondary alcohol with OH on the second carbon. ठीक है, उसके अलावा एक ही एल्डिहाइड है, which is ethanol that give this test positive, and only one primary alcohol which is ethanol that give this test positive. So ethanol, secondary alcohol with OH on the second carbon, ketone with OH on the ketone with C double bond O on the second carbon. These 4 types of group give this test positive. ठीक है बेटा? So I just try to give you an overview of all these organic reactions, बेटा एक दफा इनको अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सिस्टमैटिक नेम का मतलब क्या है बेटा? सिस्टमैटिक नेम का मतलब है कि आपको इनका IUPAC नेम बना है। जस्ट रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। ये पेपर है मई जून 21 का 2-3 वेरिएंट। चलो एक दफा पढ़ो जरा, मुझे 2 मिनट जरा अपनी सांस बहाल करने दीजिए।
ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। 1,3 dichloropropane to ol can be made by reacting M. This molecule का रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए, how many carbon atoms are present? 1 carbon, 2 carbon and 3 carbon. ठीक है, so these are the 3 carbon. अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम zigzag फॉर्मेट उन्होंने डिफरेंट तरीके से लिखा है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन, नॉर्मली बिकॉज दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स टू ड्रॉ इट, सो आपको ये लगेगा कि ये एक और कार्बन है और उस पर क्लोरीन लगा है, ऐसा नहीं है। दिस इज द लास्ट कार्बन and on this carbon you have a chlorine, although the length looks same. This is 1 carbon, so there are 3 carbons. ठीक है, and on the first carbon, if this is carbon number 1, 2 and 3, you have 2 chlorine present on position number 1 and a 3, so it is 1 comma 3 dichloro. ठीक है, और 1 2 3 कार्बन है, तो दिस और 3 कार्बन वाला कीटोन है, तो दिस इज प्रोपेन 2 on. ठीक है, क्लियर। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है 2 on, क्योंकि प्रोपेन में इफ यू हैव 3 कार्बन एंड यू हैव टू मेक अ कीटोन, सो इसके अलावा और कहीं हो नहीं सकता। सो सिर्फ प्रोपेनॉन में डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन बताना जरूरी नहीं है, बट अगर आप बता देंगे तो आपको कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आप इसको प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन 1,3 डाइक्लोरो आना चाहिए। नेम द फंक्शन ग्रुप दैट प्रेजेंट इन एम। ठीक है, एम में फंक्शन ग्रुप कौन सा है बेटा? तो आपके पास कीटोन प्रेजेंट है। क्या क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे? तो लिखेंगे, अगर वो सिर्फ बोलता है नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन एम, उसने कहा नेम द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन एम दैट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ कीटोन ही चेंज हो रहा है, क्लोरीन इज एज इट इज। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ कीटोन आंसर लिखा है, अदरवाइज हम क्लोरीन और कीटोन दोनों लिखे। इज इट अ सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस? तो रिडक्शन ऑफ कीटोन के लिए LiAlH4। ठीक है, रिएजेंट एंड कंडीशंस नहीं लिखा तो आप से भी लिखेंगे, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि कंडीशंस लिखनी है नहीं, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यस यू कैन सी यूज बोथ एंड प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन, पूरा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और NaBH4, इनमें दोनों लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सेपरेट सैंपल ऑफ 1,3 डाइक्लो। अब देखो 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली देखा जाए तो इनमें से शुरू के 2 मार्क्स जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। 1,3 डाइक्लोप्रोपेन 3, ठीक है, दोनों का रिएक्शन, ईच रिएक्शन Q and R आर टेस्टेड। इन दोनों को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करवाया है, Q बना और R बना। ठीक है, डाइक्रोमेट के साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है ना, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल and this is also a secondary alcohol and this is a primary alcohol, है ना? दो H है ना, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी है। अब देखते हैं, उसने कहा Q and R, इसकी जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना के भी दिखा देता हूँ। Q क्या बनेगा, इसी डिजाइन में बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O, Cl ऐसे ही है, Cl ऐसे ही है। ठीक है, सो इट इज अ कीटोन बेसिकली। ठीक है, इन दिस केस Cl ऐसे ही है, it will form ketone and it will form carboxylic acid. So you have carboxylic acid because it's a primary alcohol and it is a ketone, so it will form a it is the secondary alcohols form a ketone. ठीक है, अब उसने कहा 2 comma for DNPI, Q के साथ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? Yes, red orange PPT. R के साथ yes सेम, क्योंकि R में भी कीटोन ग्रुप है और DNPH कीटोन से रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड से भी करता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या Q में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है? नो, तो नो चेंज। इट हैज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो आप लिखेंगे एफरवेसेंस ऑफ CO2। ठीक है बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कराने का रीजन इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्केलेटन फॉर्म है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, वाई इट सीम्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड। देखो क्या हुआ, दिस इज अ कीटोन, एग्रीड, और यहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। ये इन्होंने लिखा हुआ पता है क्या है? ये बेसिकली वही हाइड्रोक्सिन है। ये तो OH है, आपको क्लियर हो गया। दिस इज बेसिकली अ CN। ठीक है, आपसे स्केलेटन पूछा जाएगा और आपको बोला जाएगा भाई यहाँ पे CN लिखो, तो आप यहाँ पर CN ऐसे ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समटाइम दे रिप्रेजेंट CN लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। और फिर देखो वो CN किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2H में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेंसिल से इन्हें मार्क कर लेता हूँ इन माई एग्जाम। क्लियर, यहां पर क्या लग गया? CN। अब देखो Cl की जगह CN आया, यानी हैलोजन एल्केन CN में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ क्या लग गया? CN। ठीक है, क्लियर। और अगेन वो CN किस में जा रहा है? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड्स में, सारे के सारे कार्बो। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड। चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 में इट सेज कि रिएजेंट एंड कंडीशन बताइए। तो आपको पता है कि कीटोन OH और CN में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज बेसिकली SCN। ठीक है, in the presence SCN, KCN and ethanol होता है। SCN in the presence of KCN। याद है ना, KCN इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। सही है। टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, अच्छा सेकंड में, स्टेप 2 में रिएजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और आपको अभी मैंने पढ़ाया है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CN की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या हो रहा है? Cl की जगह पर CN आ रहा है। एग्रीड, बाकी सब कुछ वैसे ही है। देखो गौर से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जस्ट लुक एट बार बार, तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और इस हैलोजन एल्केन कैसे कन्वर्ट होता है? KCN इन इथेनॉल। ठीक है, और हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। क्लियर। टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेप 4, रिएजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन इट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। आई सेड कि दिस क्वेश्चन इज, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, देखिए। यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CO2H। एग्जाम में इस तरह मार्क कर लिया करें तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, CO2H, CO2H। ठीक है जी। The table describes some of the similarities and difference between the citric acid and compound X. Compound X कोई भी compound X है, ठीक है, clear? Chiral carbon citric acid में तो नहीं है, हमें नजर आ रहा है, there is no chiral carbon present. X में है। रिएक्शन विद सोडियम सिट्रिक एसिड फिश प्रोड्यूस करता है बिकॉज़ इट हैज कार्बोक्सिलिक एसिड। X में, यानी X में कायरल कार्बन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है। ठीक है, रिमेन्स ऑरेंज बिकॉज देयर इज नो कंपाउंड। ऑरेंज टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इट कुड बी एल्डिहाइड, इट कुड बी कीटोन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। अब याद रखिएगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सोडियम मेटल के साथ जितने भी OH हैं उन्हें ONA में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी OH हैं। एंड इफ यू कीप द सेम डिजाइन तो आपके लिए इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा, बट मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट करेक्टली। जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बस आप उतनी उसी तरह से रिप्रेजेंट। ओके, कितने सोडियम आए? 1 2 3, और ये वाला भी OH जो है वो Na में चला जाएगा बिकॉज इट रिएक्टेड। सो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 लगा दें। ठीक है, क्लियर। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन? H2 गैस रिलीज होगी 1 2, तो 2।
एक OH हाफ मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो 4OH कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे? 4 मोल्स। यूज इंफॉर्मेशन टेबल स्केलेटन फॉर्म ऑफ X, ठीक है, क्लियर? अच्छा, आसान है। देखो फिश प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो प्रेजेंट होगा, तो मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 कार्बन हो गए। अब उसने कहा कि रिएक्शन विद रिमेन्स ऑरेंज टू ग्रीन, और 3 ऑक्सीजन है, यानी अब मुझे एक ऑक्सीजन और ड्रॉ करना है, और ऐसा ऑक्सीजन ड्रॉ करना है कि वो ऑरेंज को ग्रीन में भी कन्वर्ट कर दे, फिर भी कार्बो, यानी एक इसके पास अल्कोहल ग्रुप था, OH, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये OH मैं यहां भी लगा सकता हूं, और ये OH मैं यहां भी लगा सकता हूं। मैंने बहुत जल्दी से OH सेकंड पे इसलिए लगा दिया बिकॉज ये मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, ठीक है। तो आप कैसे लगाएंगे? तो आप देखेंगे कि उसने कहा कि इट हैज अ chiral carbon, so if you write down OH here and make it an primary alcohol that can be oxidized from orange to green, so ये पे तो आपके पास जो है वो chiral carbon नहीं बनेगा। chiral carbon कब बनेगा? जब आप OH यहां पर लगाएंगे, ठीक है। So ये बात समझ आ गई? तो I remember it from the last year that when I solved this question, I placed the OH on the first carbon. तो सवाल सही हो गया, सारी डिस्क्रिप्शन भी करेक्ट हो गई, बट एक डिस्क्रिप्शन करेक्ट नहीं हो रही थी। 5 मिनट। हम्म। तो बच्चों की कितनी पढ़ाई बनी। ओके, ठीक है। सो बट इट वाज नॉट कैरल, सो ये एक एरर हो सकता था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद एसिड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट बट सिट्रिक एसिड बिकॉज़ दिस कंटेन प्राइमरी, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पर जो आपके पास OH है दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। बस आप सिंपल रीजन लिखेंगे बिकॉज कंपाउंड एक्स द OH प्रेजेंट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। कंपाउंड एक्स पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर नेम 2 की फीचर दैट गिव राइज टू स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म के लिए कैरल कार्बन प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। अच्छा, इसने 1 लिख दिया, सॉरी। कंपाउंड एक्स आप वो कह रहे हैं 2 फीचर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, तो एक फीचर तो ये कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए स्टीरियोआइसोमेरिज्म के लिए, क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिकल कवर अप हो जाता है। दूसरा है कि आपके पास जो है वो कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब इसीलिए एक्स में कायरल कार्बन है, इसलिए एक स्टीरियोआइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सो ऑन, ठीक है। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर, मेरी अब आवाज बंद होने वाली है, एंड मेक श्योर दैट यू सॉल्व दीज सिंपल से। अब सिंपल से क्या, यू मस्ट बी डूइंग द ईयरली पेपर्स राइट नाउ, तो मेक श्योर दैट यू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन करो। इफ यू हैव एनी रिवीजन रिमेनिंग वो रिवीजन करो। और ऑर्गेनिक में ये जनरल इंट्रोडक्शन था, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक सेशन ऑर्गेनिक का, अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, आई कांट प्रॉमिस इट, सो मैं एक सेशन ऑर्गेनिक का रख के कुछ और क्वेश्चंस इस तरह के आपको करवा दूंगा। इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनी ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लीज डू सेंड इट टू मी। सेकंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टफ व्हिच इज बेसिकली the do and don'ts of your practical before the practical, and ये जो पेपर से पहले एक सेशन होने वाला है 10th को इंशाल्लाह, 1-1.5 घंटे का, 1 घंटे का एक सेशन लूंगा मैं, in which I will be talking about कि भाई देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इस तरह लिखना है, क्वेश्चन पूछे तो इस तरह लिखना, किन जगहों पे मार्क्स डिटेक्ट होते हैं, ठीक है, किन जगहों पे नहीं होते। और ऑलमोस्ट इन मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन में ऑलमोस्ट कवर अप
एवरीथिंग रेदर देन इनऑर्गेनिक स्टफ। उसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने डिस्कस की इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक। व्हाई आई डिडंट डिस्कस इनऑर्गेनिक? बिकॉज़ मेमोराइजिंग स्टफ, ज्यादातर मेमोराइजिंग इनऑर्गेनिक, तो याद कीजिए मेजर क्वेश्चन बनेगा इनऑर्गेनिक से भी और ऑर्गेनिक, इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बेटा। आप देखें अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड देख रहा है, लेकिन अगर आप इसे तरीके से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये 3 मार्क्स जो आएंगे तकरीबन फ्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के आपको मिले। बट बच्चे यहाँ पर ही इतना पैनिक हो गए थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि दे डिडंट आइडेंटिफाई कि ये ट्रिपल बॉन्ड एन लिखा हुआ है, सी एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इतना पैनिक हो गए थे कि बाकी पार्ट भी इसका खराब हो गया। टॉकिंग अबाउट लाइक जब ये हम किसी असेसमेंट में बच्चों से पूछते हैं तो वहां पर इस तरह ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये बेसिकली पेपर है, हमारा वेरिएंट नहीं है, लेकिन एक वेरिएंट हमारा 2-2 में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, 22 के पेपर को, 21 के पेपर को। फेस प्रॉब्लम, डू लेट मी नो, ठीक है। चलें जी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी डन विद द क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।